welcomes you on the online classes of Vidya Bhargavat Senior Secondary School. Beta, in my last video session 34, I had discussed exercise 1.4. In this exercise, what you did how to find the rationalizing the denominator. ठीक है, आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कैसे करते हैं आपने ये सीखा. एंड डिफरेंस बिटवीन रैशनल और इरैशनल. इफ यू हैव गिवन सम एक्सप्रेशन, सो when will you say that the given number is rational or irrational? Got it? So in this video session 35, I would like to discuss the new topic, and the name of the topic is laws of exponent of real numbers. Got it? So have a look. Number 1, first है if a raised to the power m into a raised to the power n. If you have an expression like this, got it? If you have an expression like this, a raised to the power m, what is a? Here a is base and m is what? M is power. A is base and m is power. When the bases are same and the powers are different, when the bases are same and the powers are different, in case of multiplication, what will you do? A raised to the power m plus n. मतलब बेस को आप वन टाइम लिखेंगे और जो भी पावर्स है वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. So in short, you can say that a raised to the power m cross a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. So through an example, I will discuss it. For example, if you have an expression 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 5. ठीक है, मान लो आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन है. यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट. मुझे पावर से कोई मतलब नहीं है. बेस कैसा है? बेस क्या है? सेम है. और इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको रूल पता है. व्हाट विल यू डू? राइट द बेस वन टाइम एंड ऐड द पावर 2 plus 5, that is 3 raised to the power 7. Got it? अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से हो, फॉर एग्जाम्पल 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power minus 5. अगर ये एक्सप्रेशन इस टाइप से, यहाँ पे भी सेम है बेटा. बेसिस क्या है? बेसिस तो सेम है, तो बेस को एक बार लिखो और मल्टीप्लाई हो रहा है. जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. अब इधर देखो 2 प्लस, अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. इस पावर को आप किस में लिखोगे? ब्रैकेट में, बिकॉज नेगेटिव साइन इज देयर. सो इन दैट केस व्हाट विल बी द आंसर? 3 raised to the power 2 plus minus, according to rule, minus 5. So 3 raised to the power minus 3, because 5 is greater number, 5 greatest number है और 5 के आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव. तो 3 raised to the power minus 3 will be the answer. Got it? So I hope you understood this fact. Second law of exponent of real number is a raised to the power m divided by a raised to the power n. अब यहाँ पे a क्या है बेटा? a is the base and m और n क्या है? m and r the powers. m और n क्या है? पावर है. अगर बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन है बीच में, इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन नाउ यू हैव डिवीजन. सो व्हाट विल यू डू? a raised to the power m minus n. यहाँ पे पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है. क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट. तो जो पहली पावर है ना वो पहले आएगी, उसके बाद दूसरी वाली आएगी. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव द नंबर लाइक 5 raised to the power 3 divided by 5 raised to the power 2. So according to this law, 5 raised to the power 3 minus 2, देखो डिवाइड के केस में माइनस होगा ना, तो 5 raised to the power 3 minus 2, so it will be 5 raised to the power 1, and 5 raised to the power 1 is 5. Got it? In the same way, अगर ये इस टाइप से हो 5 raised to the power 3 divided by 5 raised to the power minus 2, अगर ये इस टाइप से है तो आपको क्या करना है? 5 raised to the power 3 minus of minus 2. अच्छा, मैंने ये क्यों किया है बेटा? मैंने आपको बताया था ना, जब भी बेसिस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है तो इन दैट केस आपकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है. तो मैंने 3 माइनस लिखा क्योंकि ऑलरेडी दिस इज नेगेटिव, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. जैसे यहाँ कोई साइन नहीं था ना, तो नो नीड
राइट द नंबर 2 इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 5 raised to the power 3 minus minus becomes positive, so answer will be 5 raised to the power 8. Got it? In the same way, अगर यही एक्सप्रेशन इस टाइप से हो, 5 raised to the power minus 3 divided by 5 raised to the power 2, आपको रूल तो यही है बच्चे, a raised to the power m divided by a raised to the power n. This implies that a raised to the power m minus n. Got it? So what will you do? 5 raised to the power minus 3 और माइनस करनी है आपको पावर्स। देखो जो साइन है उस नंबर के साथ वही साइन लगाओ, फिर माइनस करना है आपको 2, तो इट बिकम्स 5 raised to the power minus 3 minus 2, it becomes minus 5. ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको ये था नेगेटिव लेने का, ये मेन मोटिव था कि मान लो कभी कभी आपके पास पावर्स नेगेटिव आ जाती है तो आप क्या करोगे। प्रोसेस वही है बेटा, देखो इन दोनों के बीच में माइनस साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, सो आई हैव पुट -2 इन द ब्रैकेट। गॉट इट? इन द सेम वे यहाँ -3 था तो -3 एज इट इज लिखे रहने दिया, और यहाँ पे क्या किया बेटा, इधर 5 raised to the power 3 plus 2 it becomes 5. Got it? So by mistake I have written. So 5 raised to the power minus 3 divided by 5 raised to the power 2. तो यहाँ 5 raised to the power minus 3 है और माइनस मुझे पावर को करना है तो -2. So it becomes 5 raised to the power -5. I hope you understood the second law. Third law is, if you have expression like this, a raised to the power m होल रेज टू दी पावर m, इसका मतलब a की पावर क्या है m है और होल पावर क्या है m है। सो इन दैट केस व्हाट विल यू राइट, a रेज टू दी पावर mn। यहाँ पे क्या करते हो, जो भी पावर्स है आप उनको मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या करो, पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव द नंबर 5 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 2, तो इट बिकम्स 5 रेज टू दी पावर 3 into 2, तो इट बिकम्स 5 रेज टू दी पावर 6. Got it? In the same way, मान लो नेगेटिव पावर है, 5 raised to the power -4 raised to the power 2, तो it becomes 5 raised to the power -4 into 2, so it becomes 5 raised to the power -8. Got it? So in the same way, you can proceed some other examples. Got it? I hope you understood the third law of exponent of real number. Fourth law means a raised to the power m cross b raised to the power m. अब देखो ये पे a और b क्या है, a and b are the bases. a and b क्या है, बेसिस है, और m क्या है, पावर है। m क्या आपकी पावर है। यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है, सो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, जस्ट मल्टीप्लाई द बेसिस। आपको क्या करना है, बेसिस को मल्टीप्लाई करना है और पावर 1 टाइम लिखनी है। Got it? You have to write the power 1 time after multiplying the bases. ठीक है? So for example, suppose if you have the number 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 3. ठीक है? So how will you write this expression? According to this, 2 into 5 raised to the power 3. So it becomes 10 raised to the power 3. Got it? Now again, if you have an expression like 5 raised to the power 3 into -2 raised to the power 3, अगर आपके पास इस टाइप से है तो आप क्या करोगे, 5 into -2 raised to the power 3, so it becomes -10 raised to the power 3. Got it? So this is the fourth law of exponent of real number. I hope you understood the fourth law also. Next is this is, you can say, important also, how to convert negative powers into positive powers. Suppose if you have given expression in negative powers, मान लो आपके पास कोई expression है और उसकी पावर नेगेटिव है, so how will you convert the negative power into positive power? So please have a look and have patience also. Look at, suppose you have the number like a raised to the power -1. Here -1 indicates the negative power. -1 indicates the negative power and this is the base. अब इसको मैं क्या करूंगी, ये क्या है
nothing is in the denominator, can I write 1? So नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल करते हैं. क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं. सो आई कैन राइट इट लाइक 1/a⁻⁴. गॉट इट? समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सपोज इफ यू हैव द नंबर 5⁻³ मान लो आपके पास है 5 की पावर -3. तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है. कैन यू राइट इट 1 लिख सकते हो. इफ नथिंग इज इन द डिनोमिनेटर, इन दैट केस यू कैन राइट 1. ठीक है. सो नाउ रेसिप्रोकल कर दो तो इट बिकम्स 1/5⁻³ नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अच्छा और भी एग्जांपल्स देखते हैं. मान लो आपके पास इस टाइप से है 5/8⁻⁴. मान लो आपके पास ये नंबर है 5/8⁻⁴. तो अब इसकी नेगेटिव पावर है ना, इसका मतलब 5 की भी -4 पावर है और 8 की भी -4 पावर है. इसका मतलब बच्चे यही हो गया ना, दोनों की पावर सेम है. 5 की पावर -4 है, 8 की भी पावर -4 है. तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा? 8/5 की पावर 4. 8/5 की पावर 4. एक और एग्जाम्पल लेती हूँ. एग्जाम्पल 3. मान लो आपके पास ऐसा नंबर है 7⁻³ एंड 2⁻⁻5. मान लो आपके पास ये है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पॉजिटिव पावर. ठीक है. तो इसका रेसिप्रोकल करोगे. इसका मतलब रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर कम्स इन द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर कम्स इन द डिनोमिनेटर. दैट इज द मीनिंग ऑफ द रेसिप्रोकल. गॉट इट? सो आप इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा? 2/7. और यहाँ 2 की क्या पावर थी? -5. तो इसको यहाँ पे +5 कर दो. और ये 7 की पावर -3 थी तो ये 7 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि आपने इसका क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया. जब आप नेगेटिव पावर्स का रेसिप्रोकल करते हो तो वो पावर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इलेबोरेट करूंगी इसको. एग्जाम्पल नंबर 4. सपोज करो इफ यू हैव एन एक्सप्रेशन लाइक दिस 7⁻²/8. मान लो इस टाइप से है तो क्या करोगे? अभी आपने बोला था बेटा ध्यान देखना, यहाँ जो 7 है ना सिर्फ उसी की पावर -2 है, 8 की पावर -2 नहीं है. अगर 8 की पावर भी -2 होती तो मैं रेसिप्रोकल करती. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? 1/8 एज इट इज लिखूंगी. 8 डिनोमिनेटर में ना 8 को एज इट इज लिखना. ये 7 की पावर नेगेटिव है तो ये 7 नीचे चला जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में बहुत फर्क है. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है विच इज इन द न्यूमरेटर जिसकी पावर नेगेटिव है. जिसकी पावर नेगेटिव और उसी की पावर को अगर पॉजिटिव बनाना तो सिर्फ उसी को देखना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे 8 की पावर कुछ भी नहीं थी. ये जो पावर है वो सिर्फ -2 7 की है. तो 7 की पावर -2 को पॉजिटिव बनाना था ना, तो 7 की पावर -2 कहाँ पे था? ये न्यूमरेटर में था. तो ये कहाँ पे आ गया बच्चे? डिनोमिनेटर में आ गया. गॉट इट? इन द सेम वे लास्ट एक और एग्जांपल है. मान लो अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है 7 की पावर 2 और 8 की पावर -3. अगर इस टाइप से एक्सप्रेशन है, देखो मैंने डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस लेके आपको समझाए हैं. तो अब आप क्या करोगे? जिसकी पावर नेगेटिव है ना उसी की पावर को पॉजिटिव बनाना है तो उसी को देखना है, बाकी से मतलब नहीं है. तो 7 की पावर 2 को एज इट इज रखो क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है. अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी ना. अब यहाँ पे 8 की पावर -3 है तो इंटू 8 की पावर +3. दिस इज द आंसर. गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट द नेगेटिव पावर्स इनटू द पॉजिटिव पावर्स. टू एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1. Beta, this is the last exercise of chapter number 1, that is exercise 1.6. So have a look. Question number 1 is fine. Beta, you have given such expression and you have to find out this. Got it? So here 64 is mentioned. Here 64 is mentioned. 64 can be written as 8 into 8. 8 into 8 raised to the power 1/2. 8 8 is 64 raised to the power 1/2. अब आप ये बोलोगे मैम आपने 80 क्यों लिखा है? 4 4 करके भी तो लिख सकते थे, 2 2 करके भी लिख सकते थे, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 4 में भी लिख सकते थे. बेटा क्योंकि मुझे यहाँ से 2 को रिमूव करना है तो मैंने ऐसी टेबल ली. ठीक है. तो दिस कैन बी रिटन एज 8 raised to the power 2 into 1/2. यहाँ पे 8 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना.
दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 8 रेज टू द पावर 2 और 1/2 ऑलरेडी था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो द फाइनल आंसर इज 8. गॉट इट. इन द सेम वे 32. बेटा 32 कैन बी रिटन एज 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2 into 2. देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 रेज टू द पावर 1/5. इन द सेम वे 2 की पावर 5 32 होता है तो वहां से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है इसलिए ऐसा करा है. तो 2 की पावर 5 into 1/5. देखो 2 5 टाइम्स है ना तो 2 रेज टू द पावर 5 and 1/5 as it is. 5 cancel with 5 only 2 is left. Got it? In the next 125 raised to the power 1/3. So it can be written as 5 into 5 into 5 raised to the power 1/3. So it becomes 5 raised to the power 3 into 1/3. 5 5s are 25, 25 5s are 125. तो 5 raised to the power 3 and 1/3 as it is. आपको पता है ना ये वही वाला लॉ है a raised to the power m raised to the power n. जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आप पावर को मल्टीप्लाई करते हो. तो सारे क्वेश्चंस में मैंने वही किया है. देखो पावर के ऊपर पावर थी तो इसने मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया. 5 raised to the power 1 and 5 raised to the power 1 is 5. I hope you understood this question very well. This is the question number 1. Now come to question number 2. In question number 2, 9 raised to the power 3/2. तो 9 की पावर 3/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 3. 3 3s are 9 raised to the power 3/2. Now here 3 is 2 times तो 3 raised to the power 2 into 3/2. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. 3 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3 means 3 को आपने 3 times मल्टीप्लाई करना है. So 3 3s are 9, 3s are 27. तो आंसर कितना आ गया 27 आ गया. Got it? In second part, this is the first part. In second part, 32 raised to the power 2/5. Got it? So अभी in question number 1 and second part में ऐसे इक्वेशन था 32 वाला तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 raised to the power 2/5. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. So it becomes 2 raised to the power 5 into 2/5. So 5 से 5 कैंसिल हुआ. 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 2 is 4. Got it? Third part is 16 raised to the power 3/4. Third part है 16 raised to the power 3/4. अच्छा देखो 2 into 2 into 2 into 2. देखो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. बेटा यहाँ 4 4 सा 16 भी होता है लेकिन यहाँ 4 रिमूव हो जाएगा इसलिए ऐसा करा है. तो इट बिकम्स 2 raised to the power 4 into 3/4. 4 से 4 कैंसिल. 2 raised to the power 3. 2 raised to the power 3 is 8. बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते. 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. गॉट इट? एंड द लास्ट पार्ट इज 125 raised to the power -1/3. अब देखो नेगेटिव पावर आ गई है. पहले मैं नेगेटिव पावर में इसको सॉल्व करूंगी उसके बाद मैं पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करूंगी. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 5 raised to the power -1/3. So 5 raised to the power 3 into -1/3. 3 कैंसिल with 3. 5 raised to the power -1. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था you have to do the reciprocal of that number. So 1/5. The answer is 1/5. यहाँ 5 की पावर 1. अगर आप 5 की पावर 1 नहीं भी लिखोगे कोई गलती नहीं है. ठीक है. 5 की पावर 1 का मतलब ही 5 होता है. Got it? So I hope you understood question number 2 very well. Okay beta, this is the last question of exercise 1.6, that is question number 3. 4 parts are there. So one by one I will do each and every part. Got it? Now look at first part. बेटा 2 raised to the power 2/3 dot 2 raised to the power 1/5. यह डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन. यहाँ डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई. गॉट इट? यहाँ डॉट डेसिमल मत कंसीडर कर लेना. ठीक है. डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन. मतलब ये दो बेसिस है ना एंड बोथ द बेसिस आर सेम. मैंने आपको बताया था a raised to the power m into a raised to the power n क्या होता है? a raised to the power m plus n.
When bases are same and powers are different in case of multiplication, write the base one time and add the power. यही रूल था. तो इस रूल का यूज करके आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन. सो हियर 2 raised to the power 2/3. अब यहाँ पे बेटा जो पावर्स है ना, वो पावर्स किसमें, फ्रैक्शन में है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन में ही ऐड कर दो. प्लस 1/5. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 raised to the power 5 और 3 का एलसीएम लोगे 15. 3 5s are 15, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 1s are 3. तो it becomes 2 raised to the power 13/15. Got it? I hope you understood. कुछ नहीं किया, दोनों पावर्स को ऐड किया. एड यू नो हाउ टू ऐड द टू फ्रैक्शंस. आपको पता है दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, बाय टेकिंग देयर एलसीएम. एलसीएम की हेल्प से. सो यू गेट 2 raised to the power 13/15. Got it? Now come to the second one. In second part, I told you one identity which is a raised to the power m raised to the power n. मैंने आपको बताया था जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आप क्या करते हो, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो. मल्टीप्लाई करते हो ना. तो अब यहाँ देखो 1 की पावर 7 है, तो अलग अलग कर दो. 1 की पावर 7 और यहाँ 3 की पावर 3 है. देखो होल पावर 7 है, इसका मतलब ये जो 3 की पावर 3 है उसके बाद भी तो 7 पावर है ना, पूरे की पावर है, तो यहाँ पे 7 भी कर देंगे. यहाँ पावर्स को आपने अलग अलग कर दिया. क्यों? क्योंकि 1 की भी पावर 7 है और 3 की पावर भी 7 है, क्योंकि होल पावर गिवन है. गॉट इट? सो इट बिकम्स 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय, देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 की पावर 21. तो इट बिकम्स 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा. तो 1/3 की पावर 21. I hope you understood the second part also. Now come to the third one. थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, लॉ क्या था, a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. यही वाला रूल था. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब भी डिवीजन है. फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन. तो 11 raised to the power 1/2 minus 1/4. मैंने आपको पहले बोला था ना, जो फर्स्ट पावर होगी वो पहले आएगी, उसके बाद दूसरी पावर. सो 11 raised to the power. इन द सेम वे जैसे आपने एडिशन किया था बिटवीन टू फ्रैक्शंस, इन द सेम वे यू हैव टू डू द सबट्रैक्शन बिटवीन द टू फ्रैक्शंस. सो 2 and 4 का एलसीएम 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 1s are 1 1s are 1. तो इट बिकम्स 11 raised to the power 2 में से 1 गया 1/4. दिस इज द आंसर. ठीक है. फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल. नाउ द फोर्थ रूल. आपको पता था जब बेसिस सेम है, बेसिस अलग अलग है सॉरी, और पावर सेम है, तो क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और पावर 1 टाइम लगाते थे. ये आइडेंटिटी थी. सो इन दैट केस 7 into 8 raised to the power 1/2, 7 8s are 56 raised to the power 1/2. I hope you understood question number 3 very well. Question number 3 is based on the 4 rules which I had already discussed in the beginning. ठीक है. Okay, one more thing beta. This completes your full chapter, that is chapter number 1, number system. In my next video, whatever video I am uploading through YouTube, on that video we will do some extra questions based on this chapter. Got it? Okay. And you have to do example number 21. Example number 21 आपको होमवर्क में करना है. ठीक है बेटा. वट एवर योर क्वेरीज आर देयर, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप जब वीडियो वॉच करते हो नीचे कमेंट बॉक्स आता है, वहां पे भी आप अपने कमेंट्स डाल सकते हो. ठीक है. अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो कि मैम इन दिस क्वेश्चन आई हैव द डाउट. ठीक है. तो जो पर्टिकुलर वीडियो होती है तो मैं उसको दोबारा से जब मैं देखूंगी तो वहां से मुझे आपके डाउट्स मिल जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड चैप्टर नंबर 1 number system very well, and take care guys.